Good morning, my dear students. Today, we are going to start our new lesson number 15, the Western Coastal States. The Western Coastal States include Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala. The major portion of all these states face the Arabian Sea. इन सारे स्टेट्स का एक मेजर पोर्शन अरेबियन सी को फेस करता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज गुजरात. द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर. द स्टेट स्प्रेड्स ओवर an area of around 1,96,000 square kilometer. It has 33 districts. Gujarat has 33 districts and Gujarat is spread over 1,96,000 square kilometer. Its population is around 63 million. The population of Gujarat is around 63 million. It shares its border with the states of Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Gujarat shares its border with Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Gujarati and Konkani are the main languages which is spoken by the people of Gujarat. Most of the people of the state are farmers who grow crops like rice, wheat, jowar, bajra, cotton, groundnut, oilseeds and sugarcane. These are the crops which are grown by the people of Gujarat. Rivers like the Sabarmati, the Narmada, the Mahi, the Tapi, etc. flow through the state. ये सारे रिवर्स हैं जो कि गुजरात में फ्लो करते हैं. नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द स्टेट आर अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, etc. Ahmedabad, Surat, Barodara, etc. are the important cities of Gujarat. The Sabarmati Ashram of Mahatma Gandhi, the Gir Forest, the Dwarka Temple, the Somnath Temple, etc. are situated in Gujarat. These all are the important places to visit in Gujarat. Now let's talk about Gandhinagar. Gandhinagar is named after Mahatma Gandhi. It has Akshardham Temple, Indrada Nature Park, then after Sarita Udyan, etc. गांधीनगर महात्मा गांधी के नाम से रखा गया है और यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल है और इंद्रादा नेचर पार्क है और सरिता उद्यान एक्सेट्रा, ये सब गांधीनगर में है. अहमदाबाद विच इज द important city of Gujarat. Ahmedabad is situated on the bank of river Sabarmati. अहमदाबाद जो है वो रिवर साबरमती के बैंक पे यानी साबरमती के तट पे सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात. गुजरात का एक सबसे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद. द टूरिस्ट प्लेस इन अहमदाबाद आर द गांधी आश्रम, हुसैन दोसी गुफा, कनकरिया लेक, काइट म्यूजियम एक्सेट्रा. गांधी आश्रम, हुसैन दोसी गुफा, कनकरिया लेक, काइट म्यूजियम एक्सेट्रा, ये सब अहमदाबाद में है. पीपल स्पीक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश. मेजर पीपल ऑफ Ahmedabad, they used to speak Gujarati, Hindi and English language. Ahmedabad is a center of trade and commerce in Gujarat. अहमदाबाद एक मेन सिटी है, यहाँ पे ज्यादातर ट्रेड और कॉमर्स का एक ये सेंटर है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट. इसे हम मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रोरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्योंकि ये यहाँ पे इतने सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, इसके चलते हम इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं. इट ऑल्सो हैज केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज. ये सारे इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं. Navratri and flying kites are the main celebrations of the city. नवरात्रि और flying kites यहाँ का main celebration है. People perform Ras Garba and Dandiya Ras, the folk dances of Gujarat, during the 9-day festival of Navratri. नवरात्रि के दौरान रास गरबा और डांडिया रास फोक डांसेस जो हैं गुजरात के, ये सब कुछ डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं 9 दिन का जो नवरात्रि का पर्व होता है उस टाइम में. Next state which we are going to read is about Maharashtra. Maharashtra is on the
कोंकण कोस्ट। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है और महाराष्ट्र जो है वो कोंकण कोस्ट पे है। महाराष्ट्र स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अराउंड 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र जो है वो 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड है। Maharashtra has 36 districts and its population is approx 115 million. 115 million population है महाराष्ट्र का। It shares its border with the states of Gujarat, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के साथ। It is a big state which stretches all the way to central India. Marathi and Konkani are the main languages spoken in Maharashtra. महाराष्ट्र में जो मेन लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं वहां के लोगों के द्वारा वो है मराठी एंड कोंकणी। राइस, pulses, mangoes, cotton, wheat and sugarcane are grown in Maharashtra. Rivers like the Godavari, the Bhima, the Krishna, the Narmada, etc. flow through the state. ये सारे rivers हैं, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, नर्मदा, ये सारे rivers हैं जो कि महाराष्ट्र से होकर के बहती हैं। The main cities of the state ये are पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद एक्सेट्रा। महाराष्ट्र के और भी कुछ जो मेन सिटीज हैं वो है पुणे, नासिक, देन आफ्टर औरंगाबाद, नागपुर एक्सेट्रा, Mumbai. Mumbai, which is the capital of Maharashtra, was formerly known as Bombay. मुंबई को पहले हम लोग बॉम्बे के नाम से जानते थे। It is the capital of Maharashtra. It is the biggest city of India. मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है इंडिया का। It is also known as the financial capital of India. Financial capital इंडिया का भी कहा जाता है मुंबई को। लोकेशन ऑफ मुंबई, इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मुंबई जो है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। इट फेसेस द अरेबियन सी। मुंबई अरेबियन सी को फेस करता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड ज्वाइंट टुगेदर बाय ब्रिजेस। और एक ग्रुप है यहाँ 7 आइलैंड का जो कि ब्रिजेस से होकर के यानी कि ब्रिज से होकर के ज्वाइंट है मुंबई में। क्लाइमेट ऑफ मुंबई मुंबई हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट। बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट है यानी कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। फ्रॉम जून टू अगस्त इट गेट्स वेरी हेवी रेनफॉल। जून टू अगस्त का जो टाइम होता है इस टाइम में मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है। इवन इन न्यूज यू कैन सी सो मैनी न्यूज कम्स ड्यूरिंग दिस मंथ्स of related to heavy rainfall. In summer season it is not very hot but it is very humid. समर सीजन में क्या होता है कि मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है यानी कि जो एयर होता है उसमें वाटर वेपर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। द विंटर सीजन इज वेरी प्लेजेंट। विंटर सीजन जो होता है वो वहां मुंबई में बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा आरामदायक बोल सकते हैं आप उसको। बहुत ही ज्यादा वहां ठंड नहीं रहती है इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम रहता है वहां का। पीपल एंड लैंग्वेज, पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई। ऑलमोस्ट इंडिया के हर शहर से हर पार्ट से लोग मुंबई में जाकर के रहते हैं। दे कम हेयर टू वर्क। Marathi is the main language of Mumbai. मुंबई का मेन लैंग्वेज है मराठी, but people of Mumbai they also speak Konkani and Hindi. Many people also speak English also. बहुत सारे लोग वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज, Mumbai has number of industries. These industries include textile, machines and tools, textile, machine and tools, silk, paint, automobile, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। सिल्क इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है, मशीन और टूल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है, पेंट्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं मुंबई में। मरीन इंडस्ट्रीज एंड फिश प्रोसेसिंग यूनिट आर ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पे मरीन इंडस्ट्रीज और फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं। बॉलीवुड, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो इन मुंबई। मुंबई में ही बेस्ड है बॉलीवुड, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड वो भी मुंबई में ही बेस्ड है।
मैनी टीवी सीरियल्स आर ऑल्सो मेड इन मुंबई। बहुत सारे टीवी सीरियल्स जो है उनकी शूटिंग मुंबई में ही होती है, वो वहीं बनते हैं। क्रूड ऑयल हैज बीन फाउंड नियर द मुंबई कोस्ट, इट इज कॉल्ड बॉम्बे हाई। क्रूड ऑयल जो मुंबई कोस्ट पे जो फाइंड किया जाता है उसे हम बोलते हैं बॉम्बे हाई। Places of interest in Mumbai. The Gateway of India is one of the most famous ancient Mumbai monument of Mumbai. Gateway of India जिसके बारे में आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, वो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही है, विच इज वेरी एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड विच इज ऑल्सो वेरी फेमस। द पोर्ट ऑफ मुंबई इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट। जो सी पोर्ट है, समुद्री पोर्ट जो है मुंबई का, वो सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट है इंडिया में। द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज ऑल्सो सिचुएटेड नियर मुंबई। जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो मुंबई के ही पास में सिचुएटेड है, मुंबई से ही बहुत नियर है। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव्स, सिद्धिविनायक टेम्पल, जुहू बीच, एसएल वर्ल्ड, हाजी अली, जहांगीर आर्ट गैलरी, देन आफ्टर तारोपोला एक्वेरियम एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ मुंबई। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस है मुंबई के। देन आफ्टर लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम बोलते हैं इंडिया का। पीपुल ट्रेवल बाय बसेस एंड लोकल ट्रेन। ज्यादातर लोग वहां पे बसेस और लोकल ट्रेन का यूज करते हैं एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया मूव्ड बिटवीन मुंबई टू थाने इन 1853। 1853 में इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन थी वो मूव की थी फ्रॉम मुंबई टू थाने के लिए। द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ऑल्सो कॉल्ड एज बॉम्बे वीटी, जिसको हम बॉम्बे वीटी भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ये एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है इंडिया का। बांद्रा वर्ली सी लिंक इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। इंडिया का एक सबसे लंबा सी ब्रिज है। कीप इन माइंड, सी ब्रिज यानी कि समुद्र के ऊपर जो बना हुआ ब्रिज सी ब्रिज है। बांद्रा वर्ली जो सी लिंक है वो सबसे लंबा सी ब्रिज है इंडिया का। मुंबई इज वेल कनेक्टेड बाय रेल एंड एयर सर्विसेज विद अदर सिटीज ऑफ इंडिया। मुंबई जो है अदर कंट्रीज या फिर सिटीज से वेल कनेक्टेड है थ्रू इट्स एयर सर्विसेज। मतलब कि एयरपोर्ट जो है मुंबई की वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसलिए वो अदर कंट्रीज से भी कनेक्टेड है, और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो इंडिया के अदर सिटीज से कनेक्टेड है। फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई। मुंबई का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। इट इज सेलिब्रेटेड विथ अ लॉट ऑफ इंथुजिज्म। फेस्टिवल लाइक ईद, दिवाली, क्रिसमस एक्सेट्रा आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन मुंबई। एज यू नो, डिफरेंट पीपुल कम एंड लिव इन मुंबई। इंडिया के हर जगह से, हर प्लेस से लोग मुंबई में जाकर रहते हैं, तो ऑब्वियसली हर धर्म की फेस्टिवल को बहुत ही हैप्पीनेस से, बहुत ही धूमधाम से वहां के लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहां का जो मेन फेस्टिवल है वो है गणेश चतुर्थी। फूड, पाव भाजी, बड़ा पाव, भेलपूरी आर द फेवरेट फूड्स ऑफ द पीपल ऑफ मुंबई। वहां के लोगों का जो फेवरेट फूड है वो है बड़ा पाव, पाव भाजी एंड भेलपूरी। शिखरखंड, स्वीट डिश इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। शिखरखंड एक स्वीट डिश है जो कि वहां का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट गोवा, देन आफ्टर कर्नाटका एंड एक्सेट्रा। थैंक यू, बाय बाय।